આ વાતનું મને દુઃખ છે, આ વાતનો મને ગુસ્સો છે, આ વાતનું મને એક એવી ફિલિંગ છે જેનો જવાબ કદાચ મારી પાસે નથી. કાર્તિક વાસુદેવ નામનો 21 વર્ષનો એક સ્ટુડન્ટ સબવે સ્ટેશનની બહાર નીકળે છે અને તેના પર ગોળીઓનો વરસાદ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એનું મૃત્યુ થાય છે. He just came in January 2022 as an international student and now he is no more. Now the question I'm asking to myself that if anyone is coming to Canada, then what is the reason they are coming for? There'll be two gentlemen will be joining us today to talk on this topic. And we need to know that what's happening. And we also need to know, again as I said, I don't want this to happen. पर शायद ऐसा हो जाता है तो आगे के स्टेप्स क्या होते हैं? उनकी बॉडी इंडिया कैसे पहुंचती है? कौन भेजता है? कितना खर्चा होता है उसमें? वो खर्चा कौन उठाता है? आखिर उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट कौन करता है? ये सारी प्रोसेस क्या है? ये सारी प्रोसेस भी जानेंगे उनसे. Nothing that I or you will be willing to know this process, and I really want कि इसमें से कोई भी ना गुजरे. And now it's finally the time to talk about this very sad news. एक है कम्युनिटी लीडर जो कि है डॉन पटेल. डॉन, warm welcome in the studio. नमस्कार जमीन, थैंक यू. And लोटस फ्यूनरल होम से हरविंदर जी हमारे साथ है. हरविंदर जी, warm welcome as well. थैंक यू सर. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. डॉन, सबसे पहला सवाल आपसे कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेट्स एक्सेप्ट इट, बट देन एज ए कम्युनिटी लीडर ये चीजें आपके पास कैसे आती है और आपको जैसे ही जिसकी जानकारी होती है, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? आप क्या करते हैं उसके बाद? જમીન, સૌથી પહેલા તો નમસ્કાર સૌ શ્રોતા મિત્રોને અને થેન્ક યુ રેડ FM ફોર બ્રિંગિંગ ધીસ અવેરનેસ ઇન ટુ ધ કોમ્યુનિટી. I am fortunate for these unfortunate events happening into the community. Any kind of this incident should not happen. આ વસ્તુ થવી જ ના જોઈએ, કારણ કે આપણે આપણા કન્ટ્રી છોડીને આ દેશને સેફ અને મચ બેટરમેન્ટ માટે સ્વીકારીને આવી છે. વેધર ઇઝ ફોર યોર સેલ્ફ, કે તમારા ફેમિલી માટે, કે તમારા કિડ્સ માટે, કોઈ પણ કારણ આપણે અહીંયા આગળ સ્ટુડન્ટ તરીકે આવીએ કે PR પર આવીએ કે ફેમિલીને લઈને આવીએ, આપણો એક જ ગોલ હોય છે કે we survive in a better way over here in this country. Exactly. Unfortunate scenarios happens અને ઘણા બધા કિસ્સા થઈ રહ્યા છે. સુસાઇડ છે, ડેથ છે, એક્સિડેન્ટલ ડેથ છે, કે આવા મર્ડર છે, બ્રુટલ મર્ડર વોટ વી કોલ. એવરી કેસ ઇઝ ડિફરન્ટ, બટ કોમ્યુનિટી એક સાથે જો આવા ટાઈમે સપોર્ટ આપશે તો આજે અત્યારે કાર્તિકનો કિસ્સો થયો છે, એની પહેલા અંકુરનો થયો તો સુસાઇડનો. બેક હોમ પેરેન્ટ્સ અને ફેમિલીને થોડું સાંત્વન મળે અને દે વિલ ફીલ કમ્ફર્ટેબલ કે ત્યાં પણ અમારી પાસે કોઈ છે જે આ લોકોનું દેખભાળ કરી શકે છે. કાર્તિકના કેસમાં અગેન અનફોર્ચ્યુનેટ સિનેરિયો, 3 મહિના થયા, જાન્યુઆરીમાં છોકરો આવ્યો. રોંગ ટાઈમિંગ, રોંગ થિંગ, વી ડોન્ટ નો વોટ હેઝ હેપન એકચ્યુઅલી. પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. પણ આવા કોઈ બી કેસ થાય જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન્વોલ્વ, સૌથી પહેલા તો પોલીસને જાણ કરે છે ને આ લોકોએ, અને કઝિન જે નિધિએ સ્ટેપ લીધા, દેટ વોઝ વેરી રાઇટ સ્ટેપ્સ. પોલીસને જાણ કરી, પોલીસને જાણ કર્યા પછી લાગ્યું કે આ વસ્તુ છે, ઇન્ડિયન કોન્સ્યુલેટ રાઇટ અવે ગેટ ઇન્વોલ્વ. એઝ લોંગ એઝ દે આર ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ હોલ્ડર, ઇન્ડિયન કોન્સ્યુલેટ કેન ડુ લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ ફોર ધેમ. અને ઓલવેઝ દે આર રેડી ટુ ડુ દેટ થિંગ. 2 મહિના પહેલા અમે મીટિંગ કરી હતી બધા બીજા કોમ્યુનિટીના એના સાથે. કોન્સ્યુલેટ ને આપણી કોમ્યુનિટી વિથ યોર હેલ્પ લાઈક રેડિયો મીડિયા છે બધા સાથે, કે કેવા પ્રોસેસ, કેવા સ્ટેપ્સ લઈએ તો આ વસ્તુને મિનિમમ સ્ટેપ્સમાં કે એલિમિનેટ કરીએ, એગ્રેવેશન ને જે બધું આગળ શું કહેવાય કે જેને પ્રોસેસ ખ્યાલ ના હોય, હાઉ વી પુટ ધ થિંગ્સ ટુગેધર ફોર ધેમ બેસિકલી. તો 2-4 પોઈન્ટ અત્યારે એ રીતના ફ્લોટ થઈ રહ્યા છે અને ઇન્ડિયન કોન્સ્યુલેટ ઇઝ વેરી વેરી એપ્રિશિએટિવ કે એ લોકો બધા સ્ટેપ્સ લઈને હેલ્પ કરવા રેડી જ છે. એક તો એક વેલફેર સ્ટુડન્ટ, ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનનું એક વેલફેર તૈયાર થઈ રહ્યું છે. ઓકે, તો એ વેલફેરના એસોસિએશન માટે પીપલ વિલ બી એબલ ટુ કોન્ટેક્ટ ધેમ. ઓકે. સેકન્ડ 24/7 એક ટોલ ફ્રી લાઇન તૈયાર થઈ રહી છે. ઓકે, કે જે તમે 911 ઇઝ વેરી કોમન. તો એટ ધ સેમ ટાઈમ જેવી રીતે ઇન્ડિયામાં 108 છે કે જે ડિફરન્ટ નંબર્સ છે, એવી રીતે અહીંયા એક ટોલ ફ્રી નંબર કરો, સ્ટુડન્ટ વિલ કમ, દે નો વોટ ઇટ ઇઝ.
ત્રીજું કે જ્યારે એ લોકો એન્ટ્રી લે છે ત્યારે જે કોલેજ ઓરિએન્ટેશન આપે છે કે what is our college or what is our university is about, you have to go for that orientation. Similar type of the things Indian consulate is trying to arrange કે તમે આ કન્ટ્રીમાં આવો છો, what you should do and what you should not do. Okay. જેવી રીતે સ્કેમના કોલ્સ છે, આ બધી જ રીતે પીપલ ડોન્ટ નો લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ, ઇમિગ્રેશન સ્કેમમાં ફસાઈ જાય છે બધી રીતે. સો આ બધા સ્ટેપ્સ ઇઝ ઇન ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. અને જેમ જેમ આવા કિસ્સા વધી રહ્યા છે, અનફોર્ચ્યુનેટ સુસાઇડ છે કે ડેથ છે, તો હાઉ ક્વિકલી વી કેન કમ અપ ટુગેધર. ઓકે, અને ઇટ્સ વેરી રાઇટલી મેન્શન બાય યુ, બટ જો આવું કંઈ પણ અનફોર્ચ્યુનેટ ઇવેન્ટ થાય છે, so for example, as you said, Nidhi have taken the right steps, but what are those steps? Can you just explain me 1, 2, 3, 4 if anybody is listening right now and they want to know, even myself doesn't know what happens? See, in this country the very first step is to contact police. Okay. Second thing is, currently Indian consulate is asking them, if it is an Indian student or Indian origin person, contact Indian consulate right away. How to contact them? Their number is right on their website. Okay. They are also trying to put up a new website કે જેની અંદર આ બધી ડિટેલ ને આખા સ્ટેપ ને પ્રોસેસ હશે. Okay. They are in the process right now કે Okay. આખી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસિજર એ લોકો પબ્લિશ કરી રહ્યા છે. Okay. ત્રીજું, yes, as I said again, I am fortunate to be part of this unfortunate event. આગળ જ્યારે અંકુરનું સુસાઇડ થયું રાતના 1:30 વાગે મારી ઉપર ફોન આવ્યો, તો વેન પર્સન નો કે ભાઈ કોઈ આ વ્યક્તિ ત્યાં આગળ જમીન ટેક કેર કરી શકશે, ડોન ટેક કેર કરી શકશે કે હરમિંદર કોમ્યુનિટી બેઝ પર, તે લોકો તરત ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરે છે. Then from that we take over. Okay. And then the whole process, sending process the body starts, yes, to India. with families request, what is their desire કે ભાઈ તમારે અહીંયા આગળ આવવું છે, તો એની પ્રોસેસ પેપર વર્કની, તમારે ત્યાં રહીને એને અંતિમ સંસ્કાર કરવો છે તો એ પ્રોસેસ, અહીંયા આગળ કોમ્યુનિટીને ફ્યુનરલ કરવું છે તો રિચ્યુઅલ જે રીતના રિલિજિયન પ્રમાણે એ રિચ્યુઅલ કરવા પણ આપણે રેડી છે, અને કોમ્યુનિટી ઇઝ ઓલવેઝ સપોર્ટિંગ ઇન ટુ દેટ વન ટુ જેમિન. That is very interesting to know. And ये सारी चीजों के बाद हरमिंदर जी आपके पास as Don rightly mentioned कि it's very unfortunate but you are somehow part of it. हरमिंदर जी आपके पास फाइनली बात कब पहुंचती है, and then what are your next steps? चीजें कैसे आगे बढ़ती है? जैसे कि अभी डॉन भाई बात ही कर रहे थे कि जैसे अनफॉर्चुनेट, और ये पहला केस नहीं है और ये शायद आखिरी केस भी नहीं होगा. ये चीजें रुझाव हमारी यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत बढ़ गया पिछले 4-5 सालों से. और अगेन की बीइंग अ फ्यूनरल होम, जब भी ऐसा कुछ हो जाता तो यहाँ पे फ्यूनरल होम ही है जो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है. और अगर हमने यहाँ उनका क्रिमेशन करना है या उनको इंडिया लेके जाना है तो वो एक फ्यूनरल होम जो है वो अपॉइंट होता है और वो फिर उसको सारे प्रोसेस करता है. तो जैसे भी इस केस में हुआ है, डॉन भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया कि ऐसा सिनेरियो हो गया हुआ है, तो वी रीच आउट टू द फैमिली. निधि से मेरा बात हुआ, उनके फादर दिल्ली में मेरा बात हुआ, उनके जो उनके फादर हैं उनके साथ. अब जो लड़का चला गया है वो तो वापस नहीं लेकर आ सकते हम लोग, बट एज ए कम्युनिटी, एज ए फ्यूनरल होम, ये हमारा जो है, मेरी ड्यूटी अपनी बनती है कि जितनी जल्दी से जल्दी उनका बच्चा उनके पास पहुंच जाए. उनको ना तो खाना खा रहे होंगे, ना वो रात को चैन से सो रहे होंगे, बट हाँ जब बच्चा उनके पास पहुंच जाएगा तो शायद उनको एक क्लोजर मिल जाएगा, उनको एक शांति तो नहीं मिलेगी. तो वो जो हमारा जो प्रोसेस जो शुरू होता है, तो हमें जब पता लगा तो देन वी हैव टू, फैमिली को जो है, फैमिली हैव टू अपॉइंट अस. वो हमें अथॉरिटी देती है कि हाँ अब आप जो है इसको टेक ओवर करो. तो निधि ने मुझको उसको अपॉइंटमेंट्स दी, अथॉरिटीज दी मुझको उसने, और उसके बाद फिर देन वी रीच आउट टू द कॉर्नर ऑफिस. जब भी ऐसे जो केस होते हैं, क्योंकि फॉरेन नेशनल है तो इसमें कॉर्नर केस इन्वॉल्व होता ही होता है. उनकी अटॉप्सी जो है वो होनी होती है. और अटॉप्सी जो है, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में, वो 1 से 2-3 दिन का उसका प्रोसेस होता है. तो उसके बाद जो है उनकी जो बॉडी है वो रिलीज की जाती है, फिर फ्यूनरल होम में वो आते हैं. अब अनफॉर्चुनेट हम ये कह सकते हैं कि जहां हम सिस्टम बैठे हैं, जहां पे मैं खुद वर्कआउट करना मांग रहा हूं और वी आर वर्किंग ऑन इट, कि जब जैसे वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे आ गया, तो गवर्नमेंट ऑफिस बंद है. तो अब जो प्रोसेस है वो मंडे को ही शुरू होगा. अब ये जो इंसिडेंट है ये थर्सडे का हो रखा हुआ है. मुझको फ्राइडे को सब कुछ निधि के द्वारा से मुझे ऑथराइजेशंस मिल गई. कार्तिक कल मेरे पास फ्यूनरल होम में पहुंच गया. हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ये अटॉप्सी केस है,
तो इसमें वो जो डॉक्टर्स हैं वो वारंट देते हैं कि बॉडी का आप डिस्पोजिशन यहाँ पे चाहे उसको दफनाना है चाहे उसका संस्कार करना है, मगर हमारे इस सिनेरियो में हमने उसको इंडिया भेजना है तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डेथ चाहिए होता है। ओके, वो स्टार्टिंग प्रोसेस है और वो जो कॉरोनर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर है वो तभी देगा जब उसकी ऑटोप्सी जो है कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसकी फाइंडिंग्स चाहिए उनको। तो वो रिक्वेस्ट की डॉक्टर्स के, डॉक्टर ने उसको मुझको इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया। मेरे पास वो इलेक्ट्रॉनिक पड़ा हुआ है बट वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वीकेंड आने से सैटरडे संडे जो है वो मेरे लिए मतलब उसको मैं यूज नहीं कर पाया। ओके, अब कल जो है उसको मैं जाके यंग एंड शेपर्ड में एक ऑफिस है यहाँ पे, उसका डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट जब अपना जो है उसका 24 से 36 घंटे का प्रोसेस है जो 100% से बनकर आएगा। और मीनवाइल उसके बीच में जो, क्योंकि 2 कंट्रीज हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके ह्यूमन रिमेन्स जाने हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट एक चाहिए हमें गवर्नमेंट का जो 100 पे इशू करेगी। उसके बाद पब्लिक का हेल्थ क्लियरेंस चाहिए कि कोई इन्फेक्शन कंटेजियस डिसीज नहीं था। फिर एक आउट ऑफ प्रोविंस जिसको पुलिस क्लियरेंस कह सकते हैं वो चाहिए। उसके बाद फिर इसकी टिकट बुक होगी। नाउ ही हैज टू गो इन अ कार्गो बाय वेट बाय वॉल्यूम। ओके, ठीक है। उसके बाद जब सभी पेपर वर्क सब इकट्ठे हो जाएंगे देन दिस ऑल पेपर वी आर टेकिंग टू द इंडियन कॉन्सुलेट। तो इंडियन कॉन्सुलेट देन कैंसिल द पासपोर्ट और उसका एनओसी देगा, एंड देन दिस पेपर वर्क एवरीथिंग हैज टू बी गो टू अहमदाबाद एयर इंडिया ऑफिस टू गेट द क्लियरेंस। Once that clearance will be done, then only we are going to take Karthik to the airport. Okay, okay. But this must have been, you know, it's very costly expense. मैं जानता हूँ कि ये, जैसे आपने पहले इंटरव्यू के पहले बताया कि इसको एक कार्गो की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट देन ये पूरा एक्सपेंस कौन बेयर करता है? Okay, जो इसका अगेन अनफॉर्चुनेटली जब हमें ह्यूमन रिमेन्स जाने होते हैं तो ये बाय वॉल्यूम बाय वेट जाते हैं। और उसके अलावा जो इसकी जो दूसरी जो लॉज हैं इसके अंदर कि ये जो ह्यूमन में जाने ये मेटल कंटेनर में ही जाएंगे। ओके, तो एवरी सिंगल थिंग जो है वो कंट्रीब्यूट फैक्टर होता है। तो आप ये लेके जाएंगे जो एवरेज रेंज है वो $13,000 खर्चा आ जाता है। ओके, एंड वो बेयर्स दिस कॉस्ट देन? अगेन अभी जो ये रुझाव जो है, मैं अगेन आई एम नॉट टारगेटिंग एनी कि मैं स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूँ ऐसा कुछ है, बट अभी जो है जो यंग जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं, जो यंग अपनी जो कम्युनिटी आ रही है उनके अंदर ये रुझाव जो है डेथ रेट्स ज्यादा आ रहा है इस वक्त। उसमें जो है कि अगर तो आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आ रहे हो और आप फुल टाइम स्टूडेंट हो अभी, तो फिर आपके पास इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस जो है उसके अंदर रिपीटेशन कॉस्ट जो है वो कवर्ड है। बट अगेन इसमें एक ब्लूप्रिंट ये है इसके अंदर, अब कॉज ऑफ डेथ क्या है। अब कई जो इंश्योरेंस कंपनी उनका ब्लूप्रिंट उनका ये है कि अभी अगर आपका नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है देन यस दोस कंपनीज आर कवरिंग। अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेट या ये जो सिनेरियो है कार्तिक का, इसमें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इट इज होमोसाइड, इट्स अ मर्डर, राइट। बट अगर आपने कुछ सुसाइड कर लिया है, आपने कुछ और ओवर ड्रग्स के साथ किसी चीज आपने जो है सब्सटेंस के साथ आपकी डेथ हुई है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन कर देती है। ओके, कई बार आप स्टूडेंट्स हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज भी कवर करता है। ओके, और मोस्टली जो है इंडियन कॉन्सुलेट भी इसमें हेल्प करती है, बट अगेन इट्स वो इंडियन कॉन्सुलेट के ऊपर है, इट्स नॉट कि उनके बिहाफ पे मैं कुछ बोल सकूं। और नहीं तो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी जो हेल्प करती है। डॉन भाई के साथ मैंने पता नहीं कितने हम लोगों ने यहाँ पे भी संस्कार किए हैं, बच्चों को हमने इंडिया भी भेजा हुआ है। और जो आजकल का जो ये मीडिया, सोशल मीडिया इतना वो है, जो बच्चे जब भी ऐसा कुछ होता है, जो बाकी जो उसका स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते हैं वो सबको गोमी पेज फंड खोल लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो इसी बात पे मैं डॉन भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि देन जब सारा कॉस्ट कॉलेज या फिर इंडियन काउंसलेट या फिर यू नो ऑल दिस पीपल माइट बी कवरिंग, तो फिर गो फंड मी पेज का पैसा का क्या होता है फिर देन? ગો ફંડ પેજ જે મીન જે લોકો સેટઅપ કરે છે એના ફ્રેન્ડ્સ હોય, ફેમિલીઝ હોય, અંકલ આંટી જે કોઈ પણ હોય, દે આર ધ ઓનર ઓફ ધેટ ગો ફંડ્સ amount. End of the day, how it is distributed, Go Fund doesn't ask, government doesn't ask. It's up to the person how he's going to distribute that cost. जैसे हरमिंदर ने बताया कि funeral cost is there. Indian consulate is also trying to bear the cost. Depends on the financial situation of the family back home. क्योंकि जैसे अब केस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं
तो इंडियन कॉन्सुलेट हर केस को तो अपना Correct. नहीं उठा सकती. उनके लिए भी एक्सपेंस तो है ही. दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ देयर थिंग्स टू कम अप इनटू दैट. फ्यूनरल होम को ये सब कुछ जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है उनकी, या फिर यहाँ पे भेजने के लिए मटेरियल कॉस्ट है, टिकट कॉस्ट है, तो उनके लिए भी कॉस्ट है. But community do come together in lots of ways, which is good. Canadians are good into donating into any kind of good cause. આપણે ખાલી કોમ્યુનિટીને એ રીતે જ અવેરનેસ લાવવાની છે કે જેટલી જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે આપણે એને એ કરીએ, નહીં કે આને એક ટાઈપનું કમર્શિયલાઇઝ બનાવી દઈએ. Okay. ગો ફંડ ઇઝ ધેર ફોર સમ ગુડ રીઝન્સ. એને એવી રીતે યુટિલાઇઝ કરો કે ભાઈ આપણે 15,000નો ખર્ચો છે તો 15,000 એ સ્ટોપ થઈ જાઓ. Yeah. You don't need to extend into certain ways. કારણ કે આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ હતી, ફુલફિલમેન્ટ હતું, એ થઈ ગયું છે. We're not going to bring the person back, as Harminder mentioned, and as we all know. પણ ક્યાંક ફેમિલીને કોઈક રીતે આપણે સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ, તો that's how we do it. But Correct, the ownership is to the person who has set up the Go Fund. करेक्ट. हरमिंदर जी, एनी बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू, क्योंकि आप ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बार आपके सामने आता है, एनी सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स यू एंड स्पेशली द इंटरनेशनल, एनी इंटरनेशनल ट्रैवलर? मेरा तो सब यही कहना है कि जब हम इस कंट्री में आए थे, तब इतने साधन, इतने सोशल मीडियाज नहीं थे. अब बहुत सब कुछ है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं. कोई भी अगर आपके मन में कुछ भी आपको कुछ है, आके उसकी बात करो. कम्युनिटी आपकी भाषा बोलती है, सब कुछ है. आओ, ओपन होके बात करो. उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ हल निकल सकता है. ना कि मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जहां हम यहाँ बैठ के इसके वो बात कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ भी नहीं, फिर उसका पश्चाताप ही है. समय का वो है. Correct. ये बच्चा जनवरी में आया है, अप्रैल में इसके साथ ये हो गया. मैं तो ये सोच रहा था कि जब उसको वीजा मिला होगा कितनी खुशियां मना रहे होंगे घर वाले. एग्जैक्टली. ठीक है. दे मस्ट हैव लॉन्ग प्लान्स. बट उनको ये नहीं पता था कि उसके बाद कोई एक गोली भी बनी हुई है जो वहां जाके इस बच्चे को काल चक्कर में ले लेगी. Yeah. तो अब इसका जो है मोस्ट प्रोबेबली ये फ्राइडे को जो है यहाँ से चले जाएगा. वी आर ट्राइंग टू डू दैट. इसका मेमोरियल सर्विस जो है हमने वेडनेसडे को 12 से 2 का रखा हुआ है लोटस फ्यूनरल होम में, 121 सिटी व्यू ड्राइव में. Okay. तो वहाँ पे जो है मेमोरियल ड्राइव में वी विल से हिम गुड बाय, और उसके बाद फिर ये फ्राइडे को हिज मोस्ट प्रोबेबली इज फ्लाइंग बैक टू इंडिया. It's very unfortunate. Don, any other suggestions for the students? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ताली दो हाथों से बचती है, and it's very unfortunate for Karthik. I'm sure 3 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि he might have involved in anything. But what all things we should be aware of जब ये नई कंट्री में आते हैं? Absolutely. I mean, accidents, nobody is able to stop it. That's why it's called accident, whether Correct. it's a shooting, whether it's a car accident or anything. Correct. For suicide, what is happening and increasing cases in Indian students, international student, I would say, we are also trying to form a welfare or the monthly meetings for the disorderness of what we call about depression and stuff like that. So I would suggest the students to keep their eyes on their peers, friends है, families है, कोई भी दोस्त है, आप बात करते रहो, किसी के लिए कोई भी जरूरत है, because prevention is always better than cure. Correct. हो जाने के बाद तो हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, we will try to do whatever our best is. But if we are able to prevent that thing before of the hand, so that's why I thank you to Red FM also कि भाई आप जो awareness ला रहे हो लोगों के, आपके जरिए लोगों के हाथ में पहुंच रहा है, कान में पहुंच रहा है, they will be able to contact you, contact us, contact anybody who you feel like it, कि depression में आके suicide, that we can prevent. Correct. Accident we cannot prevent it because it is an accident. So my advice to the international student is keep an eye on your peers. देखो आप वो बंदा कहाँ पे जाता है, क्या करता है, कांटेक्ट रखो. फैमिली बैक होम ऑल्सो कि भाई आपको ऑलवेज कांटेक्ट में रखो, कहाँ पे क्या कर रहे हो, किसके साथ में रह रहे हो. बिकॉज लास्ट केस एज वी हैड इट, फैमिली वर नॉट इवन अवेयर कहाँ पे रह रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, हाउ ही कमिटेड द सुसाइड, हाउ ही इन हिज ओन रूम. जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे राइट स्टेप पे था, उसका अच्छा जॉब मिल गया था, कार ले ली थी, सब कुछ उसका सब क्लियरेंस होते होते जब इन नवंबर में उसने सुसाइड किया, लास्ट वीक में उसका सब क्लियर हुआ है. इट टुक 4 months to clear all his belongings and clear all the governmental procedure. So again, the advice to international student is keep your eye open, contact anybody in the community, keep in touch,
कीप इट एंड जस्ट स्प्रेड द अवेयरनेस. स्प्रेड द अवेयरनेस एंड बी अवेयर की लाइफ में आपके आजू बाजू क्या हो रहा है. और इन सारी चीजों के लिए हरमिंदर जी एंड डॉन, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सर. इन सभी चीजों के बीच में यदि मेरे पास किसी के लिए भी कोई भी सवाल है तो वो है आपके लिए. आपके लिए भी है, आपके आजू बाजू रहने वाले लोगों के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है. मैं रिस्पॉन्सिबल किसी को नहीं मानता, पर किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि आखिर ये हो क्यों रहा है. आज मैं बाहर जाके जब गन लेके किसी को भी सीने पे ताक देता हूं तो ये मेरे पास हिम्मत कैसे आएगी. और ये हिम्मत आती है तो उस हिम्मत को स्टॉप करने की भी ताकत किसके पास है. आखिर हम चीजें क्या क्या कर सकते हैं एट गवर्नमेंट लेवल, एट कम्युनिटी लेवल, एट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी लेवल और मेरे जैसे लोग. आखिर हम कर क्या सकते हैं. इफ एवरीबडी प्लेज द रोल, आई मस्ट से दिस कैन बी स्टॉप्ड 99.99%. पर ये आप और मैं और आपके आजू बाजू रहने वाले लोग शायद ये नहीं करेंगे तो ये कभी स्टॉप नहीं होगा. तो प्लीज इस इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल लेकर आपके आजू बाजू हो रहे कोई भी होमिसाइड या फिर कोई भी अटैक्स या फिर कोई भी इंसिडेंट उसको रिपोर्ट करे, उसको सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताए, उसको अवेयर करे. एंड व्हाई नॉट? डोंट फील अशेम्ड ऑफ इट, डोंट फील एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट. आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा. सो प्लीज उसकी जिम्मेदारी लेकर उसको अवेयर कीजिएगा लोगों को, और किसी को भी कोई भी जरूरत है तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिएगा. विल बी राइट बैक. थैंक यू.